Hello, hi everyone. Welcome back to the channel, and I hope all of you are well. So, I was busy last for the last few weeks in wrapping up the good and bad things which we did for the last few months, and from today onwards, I have I was interacting with the students in the campus, and I found that uh, like I was really impressed by the affection that they have showed towards me. So I have decided to pick myself up for creating this series, which I would be starting from today onwards. The series is actually for this educational DP contest, which we have uh, at Coda. Huh? So although the solutions are indeed available, but maybe this may give you a different blend of taste. Let's start with the first problem of the series, that is frog jump 1. So these are the problems which I would try to solve one problem every single day, and this is the first problem for this series, which is frog. So let's not waste much time and let's start with the problem. Frog 1. So in this problem, we are given n stones. The stones are numbered from 1 to n. Okay, and the height of ith stone is edge of I. So there is a frog who is initially on stone number 1. Okay, so there is a frog who is initially on stone number 1. He will repeat the following action some number of times to reach stone number n. So what we have here is कि भाई हमारे पास कुछ n stones रखे हुए हैं, and on the first stone we have a frog standing on the first stone, and we need to reach the last stone of this like the series of the stones, and the frog is standing on the first stone initially. So what frog can do, he can repeat the following action. That is, if the frog is standing at, let's say, uh, ith stone, he can jump, or it can jump to I plus 1 or I plus 2. Okay, and whenever the frog jumps, there is a cost associated with that jump. So you can think of it like कि जब भी हम jump करेंगे, definitely there is a energy consumption, है ना, एनर्जी यूज होगी ना, तो वो जो एनर्जी हमारी यूज हो रही है, दैट इज द कॉस्ट है। ठीक है, तो दैट इज कैलकुलेटेड एज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एच आई माइनस एच जे। फाइन, एच आई माइनस एच जे इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ द टू स्टोन्स फ्रॉम वेयर द क्या कहते हैं उसको, जो अपना मेंढक है वो जहाँ से शुरू कर रहा है और जहाँ जहाँ पे जा रहा है, पहुंच रहा है। ठीक है, आई इज द स्टार्टिंग वन, जे इज द लैंडिंग स्टोन। सो अब करना क्या है इसमें, तो दैट मीन्स हर एक स्टोन पे दो ऑप्शंस हैं उसके पास, या तो नेक्स्ट वाले पे जाए या नेक्स्ट के नेक्स्ट वाले पे जाए, है ना। तो what we have to do is we have to find the minimum possible total cost incurred before the frog reaches the stone number n. तो सिंपल सी बात है भाई, फ्रॉग है अपना, फ्रॉग स्मार्टली खेलना चाहता है, वो चाहता है कि भाई मैं लास्ट में तो पहुंच जाऊं, बट मेरी जो एनर्जी है वो कम से कम यूज हो। वो जहाँ पहुंचना है वहां जाके फिर उसको मजे भी तो लेने हैं सारी एनर्जी पहले यूज कर देगा तो वहां क्या करेगा जाके। So that's why he it wants to find the minimum possible cost to reach the last stone, and you are supposed to help the frog. ठीक है, तो let's start with the सबसे पहले constraints देख लेते हैं, थोड़ी डिटेल्स पे नज़र मार लेते हैं। हमारे जो वैल्यूज है वो इंटेजर्स है ना, और n जो है वो 10 to the power 5 है, मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 1 लाख स्टोन्स हो सकते हैं, और हाइट जो है किसी भी स्टोन की 10,000 यूनिट हो सकती है, 10 to the power 4। उससे बड़ा तो क्या ही स्टोन होगा, फिर वो स्टोन नहीं है ना। अब आते हैं कि इससे क्या कहते हैं सॉल्यूशन पे, है ना, हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस सॉल्यूशन, विद सॉल्व टुवर्ड्स सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम। ठीक है, अब देखो यार, एक तो पेन टैब भी थोड़ा ना चल नहीं रहा कई दिन से, मतलब आज देखा नहीं चल रहा, दैट इज़ अनदर रीज़न कि भाई इंटरेस्ट नहीं बन रहा वीडियोस बनाने में। ठीक है, ठीक है, सो लेट्स टेक द फर्स्ट एग्जांपल। द फर्स्ट एग्जांपल इज सिंपल 10 30 40 20। So 10, so then we will have 30, so we have 10 here, and then we will have 40। 10 और 30 में थोड़ा डिफरेंस कम लग रहा है ना,
ठीक है, कोई बात नहीं, इसको ठीक कर देते हैं, बट लेट्स नॉट डू दिस। ठीक है, 40 मीन्स कहीं यहाँ होगा, और इसके बाद हमारे पास हो जाएगा आई थिंक 20, so 20, so 20 is here, 30, and then we will have 40, and then we will have अपना 20। ठीक है, अब देखो, ये हमारे पास कॉन्फ़िगरेशन है, ये रहा हमारा फ्रॉग। सो फ्रॉग इज हियर, सो हियर वी हैव फ्रॉग। तो यहाँ हमारा फ्रॉग है, ठीक है, और इसको पहुंचना है यहाँ पे, बोले। अब देखो कैसे पहुंचेगा। यहाँ पे खड़ा हुआ फ्रॉग के पास दो ऑप्शंस हैं, या तो वो नेक्स्ट वाले स्टोन पे मूव कर जाए, या फिर नेक्स्ट के नेक्स्ट वाले स्टोन पे मूव कर जाए। फाइन। So that means for, like, for in any index, it has an option from index to index plus 1 or index to index plus 2. So from here, the frog can move to the second one or to the third one, right? अब देखो, देखते हैं एक दो कुछ पाथ्स एक्सप्लोर करके देखते हैं, और फिर देखते हैं इसमें एक्चुअल में हो क्या रहा है। सो लेट्स से द फ्रॉग मूव्स फ्रॉम 10 टू 30। ठीक है, 10 टू 30 वो जा रहा है। तो पहला कितना कॉस्ट हुआ उसका, 20। 30 माइनस 10 होता है 20, प्लस फिर वो सेकंड वाले स्टोन से थर्ड पे मूव कर रहे हैं, मतलब हम एक एक साइज के जंप ले रहे हैं। फिर तो इससे हमारा जो कॉस्ट हुआ 40 माइनस 30 वुड बी 10। फिर फ्रॉम 40 वी वुड हैव 20, so 40 minus 20 we would have 20, so we are taking the differences, right? So here the overall cost would be 50, है ना। अब देखो 50 हमारे पास कॉस्ट है, which is this is one of the ways to reach the ending point, but there are other ways as well. So we can also start from the first, like we can start from the first and we can move to the second one as well. So let's explore another way. So from here onwards, from here first stone, you can move from the first stone to the third one, and then from the third to the last one. That is going to give you 40 minus 10 to be 30, and 20 minus 40 to be 20. So 30 plus 20 is going to give you 50, है ना। अब 50 हमारे पास इसका कॉस्ट है, तो इसका भी 50 ही है। तो इस तरह से देर आर डिफरेंट वेज, है ना। हर स्टोन पे मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, पहले पे दो है, फिर सेकंड पे दो है, फिर थर्ड पे दो है, एंड सो ऑन। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यही है कि अपने को क्या करना है, अपने को मिनिमम वाला पाथ बताना है, नॉट द पाथ, नॉट द एक्चुअल पाथ हमें बताना है। दैट इज अ फॉलो अप प्रॉब्लम, यू कैन सॉल्व इट फॉर योर, यू कैन सॉल्व इट योर सेल्फ। वंस यू सॉल्व दिस वन, यू जस्ट नीड टू रिटर्न दैट इंटीजर, that the minimum cost to reach the last bar or the last stone, starting from the first stone, taking these two types of jumps। ठीक है, that's what you have to do। अब देखो, अपने को करना क्या है कि अपने को we have to लाइक, अब ये चीज़ तो क्लियर है ना कि क्या करना है। तो लेट्स थिंक अबाउट द सोल्यूशन। तो पहला सोल्यूशन आप सोच सकते हो कि आप ग्रीडीली इसको सॉल्व करने की कोशिश करोगे। ग्रीडीली सॉल्व करना मतलब ये है कि आप क्या करोगे कि इसको you can start from the first one, and then you can you say, okay, I will take the jump which gives me the minimum cost for the next step only. I don't care about what is going on after the next step. It may cost me more, but that doesn't matter. I will just look at the next step, that's all. The best next step, the best next step is the one which takes the minimum amount of energy। फाइन। तो पहला वो ऐसा स्टेप वो है कि फ्रॉम 10 to 30। अब देखो फ्रॉग यहाँ खड़ा है 10 से 30, या फिर 10 से 40। तो विच वन द फ्रॉग इज गोइंग टू टेक, definitely the one which consumes lesser energy, and that is the first one, from 10 to 30। तो 10 to 30 is going to give you 20, है ना, 20 प्लस, अब 10 to 40 तो नहीं लेंगे क्योंकि 30 है उसमें। अब दैट्स ऑल। अब यहाँ पे खड़े हैं, ग्रीडी स्टेप ले लिया हमने, इसी को कहते हैं ग्रीडी स्टेप। अब सेकंड से हम मूव करेंगे ईदर टू थर्ड वन और टू फोर्थ वन। तो थर्ड वन जो है इट विल गिव यू 10, और
सेकेंड टू फाइनल में अपने जाएंगे, इट इज गोइंग टू गिव यू 10. So which one is better? Anyone you can take, but the cost is going to be 10. So here the greedy solution is actually giving you the optimal answer, but uh, if you try on the second test case, which is this one, this test case, you will see that let's just try it. 30 10 60 10 60 50. 30 10 60 10 60 50. 60 and then we will have 50. तो अब हम शुरू करते हैं पहले उससे फर्स्ट स्टोन से, विच इज़ दिस वन. तो यहाँ से हम मूव करेंगे या तो सेकंड पे या फिर यहाँ से मूव करेंगे थर्ड पे, है ना. तो दो रास्ते हैं हमारे पास. ग्रीडली देखें तो हम 30 से 10 पे ही जाएंगे क्योंकि इट विल गिव यू अ कॉस्ट ऑफ 20 प्लस 10 से हम कहाँ जाएंगे, ईदर टू द थर्ड वन और टू द फोर्थ वन. इसके अलावा तो और कोई नहीं है ना. दो ऑप्शन ही है. 10 से 60 पे जाने का मतलब नहीं है क्योंकि 50 जो है इट इज वर्स देन द सेकंड स्टेप. तो हम सेकंड से कूदेंगे सीधा फोर्थ पे. तो इट इज गोइंग टू गिव यू 0. So from here, either to 60 or to 50, to 50 to give a cost of 40. So we will have 60 at the end. ठीक है. तो this is the answer which I am getting when I am following the greedy approach. But I don't want to. But this is not the correct answer. The correct answer is 40. So I am missing something. The thing which I am missing is I am not even caring about the thing like the steps which I would be taking ahead. Let's say if I take greedily, I take a step which gives me the best answer, but it may not give you the best answer in the long run. Fine. Like here I am moving from 30 to 10, like, है ना. तो ऐसा हो सकता है कि यार आगे जाके कोई ऐसा स्टेप मिल जाए जो आपका वो जो डेल्टा है, जो आपने कम सोच के वो स्टेप लिया था, इट मे इंक्रीज, है ना. तो दैट्स वाई द ग्रीडी सोल्यूशन इज नॉट गोइंग टू वर्क. अब देखो आते हैं इसके ट्रू सोल्यूशन पे. ट्रू सोल्यूशन इज, अब नेक्स्ट थोड़ा थॉट प्रोसेस को इसको थोड़ा रिफाइन करते हैं. हम देख सकते हैं कि इसका फिर और क्या चाह रहा है. सिंपल है. अपन क्या कर सकते हैं कि यार सारे ही पाथ एक्सप्लोर कर लो. सारे पाथ कितने होंगे. तो अगर हर स्टोन पे मेरे पास दो चॉइसेस हैं, तो कितने स्टोन्स हैं मेरे पास, एन स्टोन्स हैं, तो कितने चॉइसेस हो जाएंगे, 2 टू द पावर एन, रफली इतने चॉइसेस हो जाएंगे, 2 टू द पावर एन चॉइसेस. तो देर आर लॉट एंड एन गोज अप टू 10 टू द पावर 5. ओके, यहाँ मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप लोगों को रिकर्शन आता है. ठीक है, रिकर्शन यू शुड नो बिफोर यू स्टार्ट लर्निंग दिस, या फिर जो भी है सॉल्विंग दिस प्रॉब्लम. रिकर्शन आपको पता होना चाहिए. अब आते हैं हम नेक्स्ट पे, जो कि है, तो हमें हमें पता चल गया कि हमारे पास कितने पाथ्स हैं, 2 टू द पावर एन है हमारे पास पाथ. तो अब हमें सारे पाथ्स एक्सप्लोर कर लेते हैं. ठीक है. ठीक है, शुरू करते हैं इसको करके देखते हैं. देखो कैसे करेंगे. तो लेट्स से वी हैव, सो हम स्टार्ट करते हैं इंडेक्स नंबर 0 से. ठीक है, इंडेक्स नंबर 0 से शुरू करते हैं. इसकी कुछ कुछ हाइट होगी, क्या होगी. यही सिंपल वाला एग्जांपल लेते हैं जो फर्स्ट एग्जांपल है हमारा, ये वाला 10. सो तो पहले ही हाइट है 10. अब देखो यहाँ से दो तरीके आगे जाने के, या तो चला जाओ भाई सेकंड वाले पे या फिर चला जाओ थर्ड वाले पे. सो इधर मूव टू इंडेक्स नंबर 1. ठीक है, इंडेक्स नंबर 1 with a height of 30, or move to index number 2 with the height of 40. So we have two options here, and this is going to give you a cost of, so from 0 to 1 if you are moving, it will give you like it will cost you
the difference between the heights of these two stones, which is 30 minus 10, and that is 20. And here, if you take this second step, it will give you 40 minus 10, that is 30. So we have these two steps, uh, these two options. So let's move forward. So from क्या कहते हैं इसको, जो स्टोन नंबर वन से हम या तो मूव कर सकते हैं स्टोन नंबर दो पे, सो मूव टू स्टोन नंबर टू, और टू स्टोन नंबर टू की हाइट कितनी है, 0 1 to 40, या फिर स्टोन नंबर नेक्स्ट स्टोन पे विच इज क्या है 20. So from here we can move to 3 with a 20 ना, हाँ 20 height. In the same fashion here on the left side we can move to left or to right. So we are standing on index number 2, so 0 1 2, so we have only one option, that is uh, to move to the last one, that is last stone with the uh, with 20 है ना. तो 20 हाइट वाले स्टोन पे मूव करो, कूल है, एंड इट इज 3. अब आते हैं कि ठीक है, द कॉस्ट इज 30 minus 40 10, एंड देन हियर इट इज 30 minus 20 है ना लास्ट वाले भी, हाँ 20, 30 minus 20 10, सेम कॉस्ट. यहाँ पे कॉस्ट 20 है. अब देखो कितने पाथ हो गए, लास्ट लास्ट अपने इंडेक्स यहाँ पे नहीं पहुंचे अभी, तो 2 से तो 3 पे चले जाएंगे, फिर 2 से 3 पे जाएंगे, जिसमें हमारे पास जो हमारा क्या कहते हैं इसको कॉस्ट है, इट इज गोइंग टू बी 40 minus 20, दैट इज 20. ठीक है, अब देखो यहाँ देखो कितने सारे हमारे पास पाथ्स आ गए, 1 2 3, वी हैव 3 पाथ्स, और फाइनली वी आर लैंडिंग एट इंडेक्स नंबर 3, 0 1 2 3, 4 स्टोन्स हैं हमारे पास. तो व्हाट इज द कॉस्ट फॉर दिस पाथ, द कॉस्ट इज 20 plus 10 plus 20, that is 50. For this one it is 30, for this one it is 50. So which one is the best path, this one. Sorry for the bad handwriting, the pen tab is not properly working for the last few days, so we'll be changing it in the upcoming days. Okay, so start, let us see how we can actually solve this problem. Now we can see that इस प्रॉब्लम में है क्या कि अब हमें पता चल गया कि सारे पाथ्स एक्सप्लोर करने हैं. अब ये चीज़ थोड़ी सिमिलर है रिकर्शन की, आपने अगर देखा हो रिकर्शन वगैरह थोड़ा बहुत आता हो या पढ़ा हो कहीं ना कहीं, तो यू नो दिस इज़ वेरी सिमिलर टू रिकर्शन, है ना. दिस इज़ वेरी सिमिलर टू रिकर्शन. रिकर्शन में ऐसे होता है, एक फंक्शन होता है, फिर वो कॉल करता है ना, फिर मिनिमम निकालते होते हैं अपने, कुछ इस तरह से. दिस इज लाइक सिंपली डायरेक्टिंग अस टू रिकर्सिव सोल्यूशन. सो लेट अस राइट द रिकर्सिव सोल्यूशन. उसके लिए अपने को चाहिए क्या, हमें चाहिए फंक्शन सिग्नेचर. सो लेट्स क्रिएट अ फंक्शन सिग्नेचर. बोर तो नहीं हो रहे, हो तो रहे होगे वैसे, बट ठीक है, धीरे धीरे आदत पड़ जाएगी. कॉस्ट इंडेक्स, अब देखो इंडेक्स जो है वो हमारा है अब देखो मेन कॉस्ट फंक्शन सिग्नेचर बनाते हैं. फंक्शन सिग्नेचर बनाते हैं तो हमें सोचना है कि भाई कौन कौन से पैरामीटर्स हमें रिक्वायर्ड होंगे. डेफिनेटली द इंडेक्स ऑन विच वी आर स्टैंडिंग, हाइट्स एरे अपने को चाहिए होगा, डीपी, सॉरी डीपी भी छोड़ो, इंडेक्स और फिर क्या कहते हैं इसको, अपने को चाहिए होगा, और क्या चाहिए अपने को, और तो अभी के लिए कुछ चाहिए, सोचो. एन चाहिए, है ना, अपने को एन चाहिए होगा. एन इसलिए, अब इंडेक्स क्यों चाहिए, क्योंकि हमें पता होगी किस इंडेक्स पे हैं. एन इसलिए चाहिए ताकि हमें पता चल जाए कि भाई इंडेक्स के लास्ट में तो नहीं पहुंच गया, वापस भी तो आना है. रिकर्शन में बेस केस भी तो होता है. तो दैट्स व्हाई वी नीड एटलीस्ट दीज टू पैरामीटर्स. ऑब्वियसली अदर पैरामीटर्स विल बी रिक्वायर्ड, दैट वुड बी द हाइट्स एरे, है ना, वो भी रिक्वायर्ड होगा, बट वो हम लिख नहीं रहे यहाँ पे अभी के लिए. ठीक है,
लेट्स नॉट राइट इट। ठीक है, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये आपका फंक्शन सिग्नेचर सिंपल सा। तो इस तरह से थोड़ा टॉप टू बॉटम सोचो कि भाई अब let's say this function returns me the minimum cost occurred, the minimum cost or the minimum energy used by frog to start from this index to uh, go till the last index, है ना। तो अपने शुरू तो कर रहे हैं इंडेक्स नंबर 0 से। min cost, so we are starting from index number 0, so we are moving till last index, let's say the index is 3, and then from here onwards, अब देखो ये क्या करेगा, ये अपने को रिटर्न करेगा लास्ट इंडेक्स पे पहुंचने तक का कॉस्ट, है ना। लास्ट इंडेक्स पे पहुंचने तक का कॉस्ट, सो अपने 0 पे खड़े हैं, तो लेट्स मूव टू 1। तो मिन कॉस्ट 1 और यहाँ हो जाएगा हमारे पास 3। ठीक है, अब देखो अपने 0 से 1 पे मूव कर रहे हैं, तो डेफिनेटली देर इज अ कॉस्ट या एनर्जी जो यूज हो चुकी है, वो कितनी है, वो है द डिफरेंस बिटवीन द हाइट्स ऑफ these two stones, the stone at index number 0 and the stone at index number 1, है ना। तो अब देखो 0 और 1 के बीच में कितनी डिफरेंस है, देखो देखते हैं अपने 0 और 1 के बीच में 20 का डिफरेंस है, तो 20 वी विल ऐड हियर। ठीक है, अब इसमें एक चीज देखी जा सकती है कि भाई ये क्या कह रहा है कि ठीक है 0 से लास्ट तक का मुझे आपको मिन कॉस्ट चाहिए, ठीक है मैं निकाल दूंगा, बट ये रिकर्सिवली कॉल कर रहा है। ठीक है 20 होगा भाई नेक्स्ट जंप के लिए 0 से 1 तक का, 1 से लास्ट तक का भाई तू देख ले। दिस इज व्हाट दिस फंक्शन इज सेइंग, दिस इज व्हाट कॉल कर रहा है उसको फॉर द सब प्रॉब्लम। वो सब चीज़ें आपको आती है, मैं अज्यूमिंग रिकर्शन नहीं आता तो फिर तो ये मतलब कोई तुक नहीं है इसको देखने का, फिर पहले वो सीखो जाएगा। या फिर अपने मूव कर सकते हैं 0 से 2 पे, 0 से 2 पे जाने पे हमारे पास 40 माइनस 10 दैट इज 30, अपने पास 30 का हो जाएगा कॉस्ट, और फिर अपने मिन कॉस्ट निकालेंगे, फिर इस फंक्शन को कॉल कर देंगे मिन अंडरस्कोर कॉस्ट टू, देन वी विल हैव 3 हियर, सो 0 1 0 2, 0 से 1 या 0 से 2, ये भी सेम ही चीज़ है। फिर मिन कॉस्ट 1 से आगे फंक्शन कॉल्स होंगी क्या, मिन कॉस्ट अंडरस्कोर कॉस्ट एक से जाएगा ये 2 पे, 3, 1 से 2 पे जाने का जो कॉस्ट है वो क्या है, 1 से 2 पे जाने का कॉस्ट देखते हैं, हाइट डिफरेंस बिटवीन दीज टू हाइट्स 40 माइनस 30 दैट इज 10, तो 10 प्लस दिस वन, अब 10 प्लस दिस वन, और फिर आ जाएगा 1 से 3 पे जाने का, 1 से 3 पे जाने का, सो 1 से 3 पे, 1 से 3 पे भी जा सकते हैं ना, 1 से 3 पे जा सकते हैं ऑफ कोर्स, एंड द कॉस्ट will be 30 minus 20 दैट इज 10, तो 10 प्लस min अंडरस्कोर कॉस्ट, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 1, सॉरी नॉट 1 3, और यहाँ आ जाएगा 3। अच्छा ये लाइक मैंने क्या किया यहाँ पे इंडेक्स ले लिया, लास्ट इंडेक्स, यू कैन ऑल्सो टेक इट एन, एन इज 4 हियर, so do not confuse this n with this 3, this is actually the last index, so this is n, there is the size of the array, so you can also put 4 here, कर ही देते हैं बाद में, फालतू में कंफ्यूज ना हो जाना। तो यहाँ है हमारे पास 4, यहाँ भी हमारे पास 4, यहाँ भी हमारे पास 4, यार इसको क्या हो गया, यहाँ भी हमारे पास 4, फिर यहाँ भी 4 है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे मिन कॉस्ट 2 और 4 वही सेम ही चीज़ आ गई हमारे पास। ठीक है, तो ये कॉल करेगा खुद को फॉर मिन कॉस्ट अंडरस्कोर कॉस्ट फॉर 3 एंड देन 4, फिर यहाँ पे
तो यहाँ वी वुड हैव 10. सो फ्रॉम 2 to 3, 0 1 2 to 3 20, तो हमारे पास 20 हो जाएगा. ठीक है. अब मिन कॉस्ट 3 to 4. 3 से तो आगे क्या ही जाएगा, 3 तो लास्ट इंडेक्स है. यहाँ इसको खोलते हैं और 2 4, तो दिस ये फंक्शन कॉल उसी तरह खुलेगा जैसे ये खुले, क्योंकि चीज़ तो सेम ही है, सेम ही फंक्शन कॉल है, 2 बार कॉल हो रहा है. तो मिन कॉस्ट, तो इस ये जो नोटिस करो इस चीज़ को, ये देखो बार बार फंक्शन कॉल हो रहा है ना, आपको आई थिंक आता ही है. तो रिकर्शन और मेमोराइजेशन तो आपको आना चाहिए इस क्वेश्चन को ढंग से समझने के लिए. अगर वो चीज़ें नहीं आती हैं तो यू शुड लर्न दोज थिंग्स फर्स्ट. ठीक है. So you can go to, let's say, some blog and read about recursion, solve a few easy problems, learn about memoization, memorize the problems that you solved using recursion, and then come back to this video. This problem is also simple. Once you learn recursion, this is easy. अब आते हैं हम इसके इसको थोड़ा सा एनालाइज करते हैं. तो इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास ये लास्ट में अपने पास हम पहुंच गए लास्ट इंडेक्स पे कई तरीकों से, 3 तरीकों से पहुंच चुके हैं हम. तो यहाँ से तो जीरो रिटर्न कर देगा, ये तो जीरो रिटर्न कर देगा, तो बेस केस इसका हो जाएगा जीरो. भाई जैसे ही हम लास्ट इंडेक्स पे पहुंच जाते हैं, हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच गए, वहां से लास्ट पे जाने का तो कॉस्ट जीरो ही है, क्योंकि हम वहीं पे खड़े हैं ना, वहां से तो कहाँ ही जाएंगे. तो दिस इज गोइंग टू रिटर्न जीरो, दिस विल रिटर्न जीरो, दिस विल ऑल्सो रिटर्न जीरो. तो what is this entire thing doing? So we'll have this will return 0 to the calling function, this will return its result to the calling function, and so on. अब देखो इस तरह से हमारे पास हर एक पाथ का कुछ ना कुछ कॉस्ट होगा और हम उसका मिनिमम निकाल देंगे. ठीक है. दैट्स ऑल. तो मतलब ये जो फंक्शन कॉल जब हमने किया था स्टार्टिंग इंडेक्स पे खड़े हुए, इन दो फंक्शन कॉल्स को, 1 के लिए या 2 के लिए, और फिर मिन ऑफ दीज 2 फंक्शन कॉल्स हमने लिया. तो मतलब ये जो भी रिजल्ट रिटर्न करेंगे, ये कुछ रिजल्ट रिटर्न करेगा R1, ये कुछ रिटर्न करेगा R2. इन दोनों का मिनिमम वुड बी द आंसर. एंड दिस थिंग इज ट्रू फॉर ऑल द फंक्शन कॉल्स. बस यही करना है आपको. ठीक है. लिखते हैं इसका सूडो कोड, लिखते हैं बिना ज़्यादा टाइम वेस्ट किए. min अंडरस्कोर कॉस्ट, वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है, तो वी विल हैव इंडेक्स, फिर हमारे पास होगा n. ठीक है. h एरे, हाइट्स एरे, ये 3 चीज़ें होंगी हमारे पास. ठीक है. अब देखो यहाँ पे हमारे पास बेस केस लिखते हैं. अगर जो हमारा इंडेक्स है, इफ इंडेक्स इज इक्वल टू n-1, so we're gonna return 0. अब आते हैं हम अदरवाइज. अब देखो इंडेक्स अगर लास्ट में 0 रिटर्न कर दिया, ये तो बेस केस हो ही गया, सीधी सीधी बात है ये वाला केस. फिर जैसे ही भाई मिन कॉस्ट इंडेक्स, मिन कॉस्ट 0,3,h आ गया, हम रिटर्न 0 कर देंगे. ठीक है. इसके बाद क्या करना है, इसके बाद तो असली कहानी शुरू होती है. यहाँ पे हम क्या करेंगे बताऊँ, वो गैप छोड़ रहा हूँ थोड़ा सा. तो आंसर, तो हम फंक्शन कॉल करो. कौन सा फंक्शन कॉल करोगे? फंक्शन कॉल करोगे आप सेम फंक्शन कॉल फॉर इंडेक्स प्लस 1. सो min अंडरस्कोर कॉस्ट फॉर इंडेक्स प्लस 1, and then n, which is here, and then we will have h plus absolute value of height of index minus height of index plus 1. ठीक है. तो ये हो जाएगा हमारे पास द फर्स्ट फंक्शन कॉल, दैट इज फ्रॉम इंडेक्स टू इंडेक्स प्लस 1. अब दूसरा फंक्शन कॉल भी है जो कि इंडेक्स से इंडेक्स प्लस 2 है ना. अब देखो
यहाँ पे हम एक चीज नोटिस करेंगे कि वी कैन कॉल मिन कॉस्ट इंडेक्स प्लस टू, बट देखो हो सकता है इंडेक्स से इंडेक्स प्लस टू आप मूव तो करना चाहते हैं, लेकिन हो सकता है इंडेक्स प्लस टू एग्जिस्ट ही ना करता हो। सो फॉर दैट वी नीड टू पुट अ कंडीशन कि भाई अगर इंडेक्स प्लस टू है, इंडेक्स प्लस टू is less than equal to n minus 1. Only in that case you're going to call this function answer is equals to, तो यहीं लिख देते हैं मिनिमम लेना ना दोनों फंक्शन कॉल्स का, min ऑफ आंसर कॉमा min कॉस्ट फंक्शन जो कि हम कॉल कर रहे हैं इंडेक्स प्लस टू देन n देन h। ठीक है, प्लस एब्सोल्यूट ऑफ इंडेक्स माइनस इंडेक्स प्लस टू। ठीक है, अब इससे हमारे पास आंसर आ जाएगा, तो वी विल रिटर्न दैट आंसर राइट एट द एंड ऑफ दैट। ठीक है, तो यही चीज़ है, तो दैट्स हाउ वी गोना सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ये उसका सूडो कोड है, दिस इज रिकर्सिव सॉल्यूशन एंड आई होप यू गॉट व्हाई वी रोट दिस सॉल्यूशन। सिंपल सा है भाई, दो फंक्शन कॉल्स करने हैं, उन दोनों का मिनिमम ले लो। अब देखो इसमें इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, देखो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है इसका 2 टू द पावर n, हम देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि हर पत्थर पे खड़े हुए हमारे पास दो ऑप्शंस हैं, तो दो 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 कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे दो को, दो ऑप्शन फिर दो ऑप्शन फिर दो ऑप्शन फिर दो ऑप्शन, एन स्टोन्स है तो 2 टू द पावर n हो गया, सीधी सी बात है। ऐसे कैलकुलेट करते हैं टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो इसका कांस्टेंट है, इफ वी डू नॉट लाइक इफ वी आर नॉट कंसीडरिंग द स्टैक स्पेस व्हिच दिस फंक्शन कॉल्स आर कंज्यूमिंग। ऑक्सिलरी स्पेस तो कांस्टेंट ही है इसका, कोई एक्स्ट्रा डेटा स्ट्रक्चर कुछ भी यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। कॉल स्टैक के लिए बिग ऑफ एन हमारा कंज्यूम होगा। ठीक है, तो वो अपनी सेकंड चीज है। अब दिस इज डेफिनेटली नॉट गोइंग टू वर्क, क्योंकि आप देख सकते हो कि n जो है वो 10 टू द पावर 5 तक जा रहा है। तो सिंस इट इज लाइक 10 टू द पावर 5, तो 2 टू द पावर 10 टू द पावर 5 तो बहुत बड़ा नंबर हो जाएगा, है ना। तो फिर वो बात नहीं बनेगी, तो मतलब नहीं चल पाएगा ये सोल्यूशन, क्योंकि हमें पता है कि किस तरह से लाइक कितने सेकंड में किस तरह से रन करते हैं, कितने इटरेशंस कर सकता है, यू नो दोस कैलकुलेशंस, इट इज नॉट गोइंग टू वर्क। अब आते हैं कि फिर काम क्या करेगा, फिर कैसे इस चीज़ को ठीक करें। देखो आते हैं, ये ऑब्जर्वेशन वही वाली पे आते हैं कि देखो हमने एक चीज़ यहाँ नोटिस की कि ये जो मिन कॉस्ट फंक्शन है 2 4, यहाँ कुछ ना कुछ इसका रिजल्ट कैलकुलेट हो गया होगा, है ना। लेट्स कॉल इट एक्स, एक्स कुछ इसका रिजल्ट कैलकुलेट हो गया होगा। अब देखो जब हम दूसरी बार इसी चीज़ को देखते हैं, मिन कॉस्ट 2 of 4 सेम फंक्शन कॉल, वी आर री इन्वेंटिंग द वी, तो हम दोबारा उसी चीज़ को कैलकुलेट कर रहे हैं, जो कि मतलब वही ओवरकिल है। क्यों करनी है, रिजल्ट अपने यहाँ पे आ ही गया था एक्स, तो डेफिनेटली जैसे ही ये फंक्शन कॉल हो, तो ये जो नीचे का सब ट्री खुल रहा है इसकी जरूरत नहीं है, यहीं से उस एक्स को उस लुकअप टेबल से उठा के रिटर्न कर दो। तो दैट मीन्स वी नीड टू स्टोर द रिजल्ट समवेयर, तो कैशिंग करनी पड़ेगी या मेमोराइज करना पड़ेगा उसको, मेमो में मेमोरी में स्टोर करना पड़ेगा। वी नीड टू रिमेंबर द रिजल्ट। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम यूज़ कर सकते हैं हैश मैप या फिर एक सिंपल एरे यूज़ कर लो। ठीक है, सिंपल एरे यूज़ कर लो। इस एरे में आप क्या कर सकते हो कि आप 0th पोजीशन पे फिर 0 1 सॉरी 2 3 एंड देन वी हैव 4। अब मिन कॉस 2 का जो आंसर है इट इज एक्स, स्टोर करा लिया। दोबारा जब इस फंक्शन को कॉल हुआ तो मैं यहाँ से उठा के वो रिटर्न कर दूंगा, तो लेट्स कॉल इट अ डीपीए।
आई एम सॉरी। तो इसका डीपीआर का साइज कितना होगा, एन, है ना। तो इससे क्या हो गया रहा है, इससे इससे देखो ये कैलकुलेशन एक बार हुई तो फिर ये पूरा हट गया, पूरा सब ट्री इस पर क्रॉस लगा देते हैं, इट विल नॉट ओपन अप, आएगा ही नहीं, ठीक है। सेम गोज फॉर लाइक एवरी इंडेक्स, तीन के लिए हमने रिजल्ट जीरो स्टोर कर लिया, तीन के लिए तो जीरो स्टोर होगा, फोर जैसा तो कुछ है नहीं, तो दिस डज नॉट लाइक दिस, तो फिर ये नहीं खुलेंगे, सो दिस इज आउट, दिस इज ऑल्सो आउट। वन के लिए कैलकुलेट कर लिया तो वन तो वैसे भी एक बार ही होगा। तो इससे आपको ये आइडिया लग जाना चाहिए कि यार हर इंडेक्स के लिए एक बार कैलकुलेशन के बाद हम उस इंडेक्स के लिए वो फंक्शन दोबारा कॉल, फंक्शन के लिए उस like for the same index we are not going to calculate the results recursively again and again, so that means हर इंडेक्स के लिए एक ही बार वो रिकर्सिवली रिजल्ट्स कैलकुलेट करेगा और उन रिजल्ट्स को स्टोर कर लेगा किसी लुकअप टेबल में, और फिर बार बार वहां से उठा उठा के जब जब वो फंक्शन कॉल होगा आइडेंटिफाई कर लेगा, मैपिंग होगी इंडेक्स के साथ। तो यहाँ पे की क्या है, की है हमारी इंडेक्स, तो फॉर एवरी इंडेक्स वी हैव अ रिजल्ट एंड वी नीड टू कैलकुलेट इट एग्जैक्टली वंस, बस यही है हमारा मेमोराइजेशन। तो हमने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा डीपी एरे पास करना है, डीपी एरे, ठीक है। और यहाँ पे हमने देखना है उस डीपी एरे को आप इनिशियलाइज कर दो किसी डमी वैल्यू से जो कि लाइक समथिंग विच इज आउट ऑफ द रेंज ऑफ द आंसर्स, तो क्योंकि एनर्जी है, कॉस्ट है ना, हम जंप क्या कहते हैं, फ्रॉग है, कुछ ना कुछ एनर्जी कंज्यूम कर रहा है, तो इसका मतलब गिव इट सम नेगेटिव वैल्यू -1, माइनस नेगेटिव एनर्जी तो क्या ही यूज करेगा, जंप लेगा या नहीं लेगा, नहीं लेगा तो जीरो, लेगा तो कुछ पॉजिटिव एनर्जी भी आया होगी, इसका मतलब -1 से इसको इनिशियलाइज कर दें, है ना। इस तो वी कैन इनिशियलाइज इट विद -1, और यहाँ से सीधे से चेक कर लो इफ डीपी ऑफ उस इंडेक्स के लिए अगर वहाँ पे -1 नहीं है, इज नॉट इक्वल टू -1, तो वी आर गोइंग टू रिटर्न डीपी ऑफ इंडेक्स, सो वी विल रिटर्न डीपी ऑफ सॉरी, तो ये हमारे पास रिजल्ट्स को रिटर्न कर रहे हैं हम यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे हमने मेमोआइज से रिजल्ट रिटर्न कर दिया, और फिर यहाँ आते हैं, यहाँ पे हम बिफोर रिटर्निंग द आंसर वी गोना स्टोर इट, इज इक्वल्स टू आंसर, अब हम इसको रिटर्न कर देंगे ठीक है। सो दिस इज हाउ इट्स गोइंग टू वर्क एंड लेट दिस विल बेसिकली रिड्यूस। अब इसमें एक चीज देखो कितना रिड्यूस हुआ है हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितना रिड्यूस हुआ है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा लीनियर हो गया है, तो हर इंडेक्स के लिए एक ही बार तो कैलकुलेट कर रहे हैं, है ना। तो इसका मतलब द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नाउ इज big ऑफ n, okay, and what is the space complexity, actually we are reducing time complexity at the cost of space, so space complexity is big of n because we are using a dp array, fine. So I hope you understood the solution well. So try to code the solution by yourself before you move to the code implementation, okay. So let's jump to the code implementation, आते हैं इसको कोड करते हैं। ठीक है, हाँ तो ये लाइक मेरा टेम्पलेट है, आप नॉर्मल ये सब की ज़रूरत नहीं है आपको, नॉर्मली आप मेन फंक्शन बनाओ और अपना रिकर्सिव फंक्शन बना सकते हो। सो लेट्स फर्स्ट read the size n, and then here we would have heights array, so let's iterate over it and let's read this heights array, है ना। अब हाइट्स एरो को रीड करने के बाद हमारे पास क्या रह जाता है, अब हमारे पास अब हम क्या करेंगे, हम एक फंक्शन बनाएंगे, ठीक है। हाइट्स एरे के साथ साथ हम एक डीपी एरे भी यही बना लेते हैं,
n माइनस वन। लेट्स इनिशियलाइज इट विद माइनस वन। अब यहाँ बनाते हैं हम हमारा क्या कहते हैं उसको, मिन कॉस्ट एरे, मिन कॉस्ट फंक्शन। सो अपने को पता है इसमें इंडेक्स होगा, इसमें n होगा, इसमें हाइट्स होगा, और क्या होगा इसमें, डीपी होगा। बेस केस लिखते हैं, अगर हमारा इंडेक्स जो है वो n माइनस वन या उससे बड़ा है तो वी गोना रिटर्न 0। ठीक है, यहाँ चेक कर लेते हैं, इफ डीपी ऑफ इंडेक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस वन वी गोना रिटर्न डीपी ऑफ इंडेक्स। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आंसर। आंसर वही कोड कर देंगे जो हमने सूडो कोड लिखा था, मिन कॉस्ट इंडेक्स प्लस वन एन एच डी पी प्लस एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एच ऑफ इंडेक्स माइनस एच ऑफ इंडेक्स प्लस वन। ठीक है, तो इफ here we would have that check index plus 2 is less than equals to n minus 1, we're going to call this function min of answer comma absolute value of h of index minus h of index plus 2, and the function call plus min cost index plus 2 comma n comma h comma e. Finally, from here onwards we will return answer. Before we return the answer, we need to store it in the lookup table. dp of index is equals to answer. So in this fashion, this will work. I don't think there is any bug in this code. Let's check it out. अब यहाँ पे अपने आंसर को स्टोर करा लेते हैं, ज़ीरो, ज़ीरो इंडेक्स से शुरू करना है, फिर n, फिर हम जाएंगे h पे, और फिर हम और क्या पास करेंगे, dp. So finally let's print it. ठीक है, यही है, anything else? So most probably this solution will work. ठीक है, हो गया एक्सेप्टेड। तो अब आई होप यू लर्न हाउ, लाइक लर्न द सोल्यूशन, आपको समझ आया। एंड ये जो कोड है ये मैं इसका एक रेपो बना दूंगा, तो उसमें पेस्ट कर दूंगा। यू कैन चेक फॉर योर रेफरेंस। अब what I expect from you students is, if you are like following this channel, is to do give your feedback as much as possible in the comments, as well as live feedback if you meet me at the campus. That will help me improve my channel a lot, and slowly and slowly we groom the things. And that's all for this video. I hope you enjoyed the video. I will see you soon in the next video with the next problem of this series. Till then, take care, bye bye, and see you.